দৰ্শকসকল ইয়াত প্ৰদৰ্শনী গৃহত যি আটক ধুনীয়াকৈ সজোৱা এই বিশাল প্ৰদৰ্শনী গৃহ ইয়াত শ্ৰদ্ধালুসকলৰ সুবিধাৰ কাৰণে সকলো ব্যৱস্থা কৰিছে আৰু বহুত আটক ধুনীয়াকৈ সজোৱা এই প্ৰদৰ্শনী গৃহত সঁচাই আমি আহি আনন্দিত হৈছোঁ অসমৰ পৰা আহি আৰু অসমৰ বিভিন্ন শ্ৰদ্ধালুক লগ পাই আমি সুখী অনুভৱ কৰিছোঁ আৰু আমি ইয়াত অন্য বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা অহা শ্ৰদ্ধালুৰ সৈতেও কথা পাতিম, তেওঁলোকৰ অনুভৱ জানিবলৈ প্ৰয়াস কৰিম। মই কেমেৰা পাৰ্চন অনুৰোধ জনাইছোঁ ইয়াত যিটো প্ৰদৰ্শনী গৃহ ইয়াত মানে সন্ত ৰামপাল সমাজৰ শিষ্যসকলৰ এক নাৰা, তেওঁলোকে কয় যে ৰুটি কপৰা শিক্ষা চিকিৎসা আৰু মকান हर गरीब को दे रहा कबीर भगवान। ये जो नारा এইটো যি সন্ত ৰামপাল সমাজৰ যি শ্লোগান হয়, সন্ত ৰামপাল সমাজৰ শিষ্যসকলৰ এই শ্লোগানটোৰ সৈতে সংগতি ৰাখি ইয়াত মানে প্ৰদৰ্শনী গৃহত এইবিলাক দৃশ্য দেখাবলৈ প্ৰয়াস কৰিছে। আপোনালোকে দেখিছে ইয়াত সন্ত ৰামপাল সমাজে যিসকল দৰিদ্ৰ শ্ৰেণীৰ লোক আছে বা যিসকল দুখীয়া লোক আছে, সেই দুখীয়া লোকসকলক অন্ন বস্ত্ৰৰ পৰা আদি কৰি ল'ৰা ছোৱালীক শিক্ষা মানে আৰু চিকিৎসালৈকে সকলো ব্যৱস্থা বিনামূলীয়াকৈ যে কৰে সন্ত ৰামপাল সমাজে যে আগবঢ়ায়, সেই ব্যৱস্থাৰ বিষয়ে ইয়াতে এই প্ৰদৰ্শনী গৃহত এই বেনাৰৰ সৈতে দেখুৱাবলৈ প্ৰয়াস কৰিছে আৰু গোটেই সামগ্ৰীবিলাকো ইয়াত দেখুৱাবলৈ প্ৰয়াস কৰিছে। মই দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, কেমেৰা পাৰ্চন অনুৰোধ জনাইছোঁ দেখুৱাবৰ বাবে। ইয়াত দেখিছে আপোনালোকে সকলো ধৰণৰ ৰেচনৰ সামগ্ৰীবিলাক ইয়াতে প্ৰদৰ্শনী গৃহত দেখুওৱা হৈছে। সন্ত ৰামপাল সমাজে যে দৰিদ্ৰ শ্ৰেণীৰ লোকক যে সহায় কৰে সেই দৃশ্যবিলাক ইয়াত দেখুৱাবলৈ প্ৰয়াস কৰিছে। এতিয়া আমি আগবাঢ়িছোঁ আগলৈ। ইয়াত সেৱাদাৰসকল উপস্থিত আছে, শ্ৰদ্ধালু উপস্থিত আছে, সকলোৱে অনুভৱ জানিবলৈ প্ৰয়াস কৰিম আৰু বহু শ্ৰদ্ধালুৱে দূৰ দূৰণিৰ পৰা আহি এই প্ৰদৰ্শনী গৃহত ভিৰ কৰি দৃশ্যবিলাক উপভোগ কৰি থকা আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ। এতিয়া এজন শ্ৰদ্ধালু কাষলৈ যাব বিচাৰিছোঁ, তেখেতে এই দৃশ্য উপভোগ কৰি আছে। ইয়াত ৰুটি কপৰা শিক্ষা চিকিৎসা আৰু মকান হৰ গৰীব কো দে ৰহা কবীৰ ভগৱান এই শ্লোগানেৰে এই প্ৰদৰ্শনী গৃহত আটক ধুনীয়াকৈ সজোৱাবলৈ প্ৰয়াস কৰিছে। শ্লোগানৰ সৈতে সংগতি ৰাখি সন্ত ৰামপাল সমাজৰ শিষ্যসকলে এই আটক ধুনীয়াকৈ এই প্ৰদৰ্শনী গৃহ নিৰ্মাণ কৰিছে। এতিয়া শ্ৰদ্ধালু কাষলৈ গৈছোঁ। নমস্তে जी। सर नमस्कार जी। सर कहाँ से हो सर आप? सर हम बागपत डिस्ट्रिक्ट बागपत से हैं, यूपी से। आपका शुभ नाम सर? नाम रविकांत दास है जी। सर आपने आया संत रामपाल जी महाराज का जो 75वां अवतरण दिवस यहाँ पे आकर आपने भाग लिया। ये जो प्रदर्शनी निर्माण किया गया श्रद्धालु के लिए जो शंका दूर करने के लिए, कैसा महसूस हो रहा है सर यहाँ पर भाग लेकर? सर जी मुझे तो ऐसा महसूस हो रहा जो परमात्मा हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी सतलोक के बारे में हमें ज्ञान दे रहे हैं, पूरे विश्व की जनता को वो ज्ञान दे रहे हैं। तो हमें तो ऐसा महसूस हो रहा कि बस सतलोक में आ गए हम। और संत रामपाल जी महाराज का एक नारा है जो वो बोलता है कि रोटी कपड़ा शिक्षा चिकित्सा और मकान हर गरीब को दे रहा कबीर भगवान। ये जो गुरुजी का नारा है, आपका जो गुरुजी संत रामपाल जी, इस नारा के आधार पर वर्तमान समय में कलयुग में सतयुग बनेगा सर? सर आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया और मैं पहले तो आपको धन्यवाद देता हूँ कि आप मीडिया वाले हमारे गुरुदेव के आश्रम में आए। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार है आपका। भाई ये खबर जनता को, हर भाई बहन को देखनी चाहिए और जितने भी और मीडिया कर्मी हैं सभी को विजिट करना चाहिए। संत रामपाल जी महाराज जी क्या दिखा रहे हैं जनता को, क्या ज्ञान दे रहे हैं, कौन कौन सी मुहिम चला रहे हैं, वो सभी A to Z सभी को बताना चाहिए, अपने चैनलों पे दिखाना चाहिए, जिससे जनता में जो भ्रष्टाचार, जो अन्य साधु संत आज बने बैठे हैं वो बाहर नहीं निकलने। पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ, आपने कहा अन्नपूर्णा मुहिम जो चलाई है संत रामपाल जी महाराज जी ने, उसके बारे में हम A1 जानकारी देंगे आपके चैनल के माध्यम से। और मैं सभी को यही कहना चाहता हूँ कि भाई जो महाराज जी कर रहे हैं ना आज, वो पूरी पृथ्वी पे कोई भी साधु संत नहीं कर रहा, सब बिल में छुपे बैठे हैं भाई, क्यों नहीं आ रहे जनता के सामने। जनता को जब ये आश्वासन देते हैं बाबा लोग कि हमारे पास सत भक्ति है, हमारे पास मोक्ष का रास्ता है, हम जनता के सुख दुख में सब काम आएंगे, हमारे पास भक्ति है, कल्याण होगा उससे। और वो जब बाढ़ आ रही है, अभी इसमें पंजाब में बाढ़ आई, वहाँ भी संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य गए, उनके आदेश के अनुसार वहाँ राहत पहुँचाई बाढ़ जो पीड़ित लोग हैं। हमारे गुरुदेव जी का नारा है रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। तो पृथ्वी पे कोई भी जीव भूखा नहीं सोगा। जो परिवार आज वास्तविक जिसको ज़रूरत है अन्न की, भाई अन्न से ही जीवन चलता है। जब अन्न खाओगे तो जब भी कुछ ध्यान में भी आओगा बातें या भजन भी ध्यान में आओगा। जब अन्न ही नहीं पेट में तो क्या होगा, जीवन है वो जीवन नहीं है। वो संत रामपाल जी महाराज जी जो ये अनेक मुहिम चला रहे हैं इतनी पवित्र,
इससे जनता इतनी खुश है भाई साहब, बहुत खुश है जनता। और जो इस पे रिस्पॉन्स आ रहा है ना, वो थोड़े दिन के बाद देखना अब भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। और ये धनाना से स्टार्ट की थी हमारे गुरुदेव ने, संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश के अनुसार पूरे विश्व में जा रहे हैं। सर हम लोगों ने भी यहाँ पर देखा एक अद्भुत नज़ारा देखा। जैसे कि हम दूसरे समागम में जाते हैं, बहुत सारे लोगों के हाथ में गुटखा, बीड़ी, तंबाकू देखने को मिलता है, लेकिन हम लोगों ने यहाँ पे आके देखा, यहाँ का जो माहौल है, किसी के हाथ में कोई नशीली चीज़ नहीं देखा। तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे सर, ये कैसे संभव है सर? यहाँ पे कोई भी लोग नशा नहीं करते हैं। सर बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। देखो, जो संत होगा पहले तो इन बुराइयों के बारे में नियम बताओगा, और भाई इन बुराइयों से बचो, आप भगत जब भी बन सकते हो, ऐसे नहीं बनोगे। नाम ले लिया, आज इतने संत हैं, लाखों की तादाद में संत हैं, वो कहते हैं भाई आइए हमारे पास मोक्ष का रास्ता है। क्या है उनके पास? कुछ नहीं है, सब उवा बाई बकरे हैं। उनके शरण में जाने से लोगों के कोई नशे नहीं छूट रहे, कोई बुराई नहीं छूट रही। क्या बकवास दिखा रहे हैं जनता को? वे बाबा थोड़ी हैं वो संत रामपाल जी महाराज भगवान के रूप में आ रहे हैं। ये सच्चे संत हैं भाई साहब। इनके ज्ञान को पढ़ने से और नाम दीक्षा लेने से कल्याण तो होता ही है, और जो बुराइयां होती है वो तो छूमंतर हो जाए। अगर कोई भी अभी गुरु जी से नाम दीक्षा लेंगे जगत के कोई भी लोग, तो अपने आप वो छूट जाएगा नशा? अजी देखो, पहले हम रूल फॉलो करेंगे, उन पे चलेंगे, ज्ञान समझेंगे। कहते हैं कि ज्ञान संपूर्ण हुआ नहीं, हृदय नहीं सदाए, देखा देखी भक्ति का रंग नहीं ठहराई। और हमारा मनुष्य जीवन का कर्तव्य क्या है, क्या करने के लिए हम यहाँ संसार में भटक रहे हैं। अगर वो संत रामपाल जी महाराज जी का जिसको अच्छे से ज्ञान हो गया, समझ गया, वो पहले तो उन बुराइयों से, नशे की तो बात छोड़ दो, वो कोई बुराई करेगा नहीं। और इन क्या व्यवस्था की गई श्रद्धालुओं के लिए इस समागम में सर? जी व्यवस्था की तो बात ये देखिए आप, 4 चांद लगा रखे महाराज जी ने, भगवान ने, तो स्वयं भगवान के रूप में आए हुए हैं। व्यवस्था की बात तो ये देखो, स्टेशन से लेके यहाँ लो आना जाना फ्री, 3 दिन लो मोहन भंडारा फ्री, हर चीज़ फ्री, नहाना धोना सब गुण, कपड़ा तेल वेल सब फ्री है भाई साहब। हमारे महाराज जी के सख्त आदेश हैं, कोई भी चंदा वंदा नहीं देता यहाँ पे। और अन्य संतों के उसमें जाके देखो, पर्ची कटेगी। हाँ भाई, स्टेज पर जाना चाहोगे वहाँ पर्ची कटेगी, महात्मा से मिलना चाहोगे वहाँ पर्ची कटेगी। ये साधु संत थोड़ी है, वो तो जीवन नाशक है, उनसे बचो भाई। और एक बात जानना चाहेंगे, जैसे कि यहाँ पे पुलिस प्रशासन की ज़रूरत भी नहीं पड़ी यहाँ पर लेने की, तो दूसरे समागम में जो जितना लोग एकत्रित होते हैं तो वहाँ पे प्रशासन की ज़रूरत पड़ती है, तो ये भी कैसे संभव है? एक संत वर्तमान समय में जेल में है और उसके सानिध्य में ये विशाल समागम आयोजन किया गया, तो प्रशासन की मदद लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ये कैसे संभव है सर? आपने कहा कि भाई महाराज जी जेल में है, भाई जेल में तो वो भी था कृष्ण जी, वो 3 लोग के भगवान थे, वो जेल में काहे को पैदा हुए? भाई जब इतने समर्थ, अरे इतने अच्छे भगवान है सच्चे, क्यों जेल में पैदा हुए? बताओ। जवाब है उनके पास। वो कहते हैं लोग बाग आज लोगों, भाई महाराज जी तो जेल में, इतने मोहन भंडारे, ये 4 चांद लग रहे हैं, बताओ इतनी तगड़ी व्यवस्था, ना कोई मिलिट्री है ना फोर्स है, अरे इतनी तगड़ी व्यवस्था। एक साधु एक जेल में बैठ के, जेल में तो आज इतने तमाम बाबा भरे पड़े हैं, बताओ किसी का कोई चल रहा है? और सर जानना चाहेंगे, जो ये मदद संत रामपाल जी महाराज के द्वारा किया जा रहा है, सिर्फ उनके शिष्यों को ही दिया जाता है या जगत के लोगों को भी ये मदद किया जाता है अन्नपूर्णा मुहिम के तहत? नहीं जी, देखो जो भगवान ने ये मुहिम चलाई है, अन्नपूर्णा मुहिम, इसका नारा बता दूं मैं आपको, रोटी शिक्षा और मकान, हर गरीब को देगा कबीर भगवान। वो समर्थ कबीर भगवान है, कबीर सेठ, हर परिवार को राहत पहुँचा रहे हैं। आज महाराज जी के रूप में आ चुके हैं। अब जनता कब जागेगी कब नहीं जागेगी? महाराज जी के रूप में कबीर भगवान स्वयं आए हैं और जेल धाम में बैठ के वो लीला कर रहे, और जिसको जागना वो जाग जाओ, और नहीं तो सोए रहोगे भाई। मैं तो स्पष्ट कह रहा हूँ, अगर किसी का भरम हो, किसी के भी, एवरीवन, सभी को कहना चाहता हूँ चैनल के माध्यम से,
जो बकवास करते हैं। महाराज जी ने इतना अच्छा काम कर रखा है परोपकार यार, और तुम घटिया सोच के इंसान यही कहते हो महाराज जी क्या कर रहे हैं, जेल में बैठे, जेल में छूट नहीं रहे। अरे जेल में छूटने की बात छोड़ दो तुम, ये देखो इतनी अच्छी अच्छी मुहिम चला रहे हैं, एक आदेश से पूरे संसार में वो राहत पहुँचा रहे हैं। और सर जो काम सरकार नहीं कर पाया संत रामपाल जी महाराज ने करके दिखाया। अन्नपूर्णा मुहिम के तहत गरीबों को मदद कर रहा है। अभी अंत में सर आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे, जो युवा वर्तमान समय में नशे से ग्रस्त है, उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे सर? देखो जी, संदेश तो हमारे गुरुदेव महाराज जी जो भगवान के रूप में आ रहे हैं वो संदेश दे रहे भाई। हम तो किसी भी खेत की मूली नहीं है, हमारा कोई आधार नहीं है भाई, हम भी उनके तरीके से जी रहे थे जीवन। महाराज जी का ज्ञान हुआ समझे किसी भाई बहन के माध्यम से, हमने टीवी चैनल देखा साधना और महाराज जी से जुड़ गए। उन नशे बुराइयों से बचना चाहता है कोई भी हो, एवरीवन, गुंडा हो मवाली कोई भी हो भाई साहब, अच्छे अच्छे गुंडे सुधार दे महाराज जी ने, भगवान ने, संत रामपाल जी। ये क्या देखो, जो नशे में बिल्कुल डूबा रहता था वो भी महाराज जी ने, भगवान ने आज निकाल दिया नशे से। टीवी चैनल के इस पे ऐसे न्यूज़ पे भी आपके इंटरव्यू पड़ा होगा। और नहीं भाई, एक चैनल बता रहा हूँ मैं, संत रामपाल जी महाराज यूट्यूब चैनल, उस पे आप ये सर्च कर लेना कि भाई जो नशा करते थे भाई बहन, उनका जीवन महाराज जी ने कैसे उनको वहाँ से नरक से निकाला, ये सर्च करके देख लियो और भाई सारी हिस्ट्री आ जाएगी। और भाई जो युवा बहन भाई देखें इस हमारी वीडियो, तो उनसे सभी से हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि महाराज जी का ये ज्ञान सुनो अनमोल। और जो नशा वशा करते हैं ना, जो नशे में रहते हैं 24 घंटे, अच्छे अच्छे जीवन सुधार दे महाराज जी ने। उनके ज्ञान को समझ के सुन के देखो भाई साहब, थोड़ा टाइम निकाल लो। अरे 3-3 घंटे की फिल्म देखते हो यार तुम, एक बार महाराज जी का आध घंटा ज्ञान सुन के देख लो, आपका जीवन का बिल्कुल ही उद्धार कर देंगे भगवान। नशा भी ख़त्म, जीवन भी आपका समाधान हो जाएगा। और महाराज जी का ज्ञान सुनोगे तो पूरा ही समाधान हो जाएगा भाई साहब। और संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने का कोई सरल तरीका सर? सरल तरीका जी यही है कि संत रामपाल जी महाराज जी के प्रवचन आते हैं साधना चैनल पे, उसके नीचे पीली पट्टी चलती है, उन पे नंबर दिए जाते हैं, उन नंबरों पे फ़ोन मिलाओ, संपर्क करो, सारा समाधान कर देंगे आपके जीवन का। संत रामपाल जी महाराज जी यूट्यूब चैनल पे ज्ञान सुने, जब आपको पता लगेगा। ধন্যবাদ সৎ সাহেব জি। সকলোজনে বিতংভাৱে বুজাই ক'লে যে প্ৰদৰ্শনী গৃহত তেখেতে এই প্ৰদৰ্শনী গৃহৰ দৃশ্যবিলাক উপভোগ কৰিবলৈ আহিছিলে। আটাইবিলাক দৃশ্য সন্ত ৰামপাল গুৰুজৰ বিষয়ে সবিশেষ আমাক জনালে আৰু সঁচাকৈ তেখেতে অন্য মিডিয়া চেনেলবিলাকক তেখেতে নিবেদন কৰিছে, অনুৰোধ জনাইছে যাতে সন্ত ৰামপাল গুৰুজৰ সান্নিধ্যত যিমানবিলাক সমাগম অনুষ্ঠিত হয় সেইবিলাক যাতে বিতংভাৱে সঠিক সত্যক যাতে জনসাধাৰণৰ মাজলৈ নিয়ে বা জনসাধাৰণক অৱগত কৰোৱায়, তাৰ বাবে তেওঁ অনুৰোধ জনাইছে। গতিকে সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ আমাৰ এছ এন নিউজৰ সৈতে জড়িত হৈ থাকিব।